عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم دفاع دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملک بھر میں عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں قریہ قریہ، نگر نگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش، شہر شہر گلی گلی چراغاں، درود و سلام کی محافل، مساجد، عمارتوں، بازاروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ 6 سپتمبر عزم، حوصلے اور بہادری کی لازوال داستان۔ ملک بھر میں یوم شہداء اور دفاع آج بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن 6 سپتمبر 1965 کو ازلی دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں وطن عزیز پر حملہ کیا۔ 17 روزہ جنگ میں افواج پاکستان نے ازلی دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ پاک افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور قصور کے محاذوں پر بھارت کو ناکوں چنے چبوائے۔ پاکستان آرمی نے دشمن کو روکا اور پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ چونڈا محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ ایم عالم کے کارنامے آج بھی تاریخ کے سنہرے باب ہیں۔ پاک بحریہ نے بھی سمندری محاذ پر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ وطن کی مٹی کے دفاع میں جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی پروقار تقریب۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسر، سیلرز اور شہداء کی فیملیز کی شرکت۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گاج کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے فرائض سنبھالی۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 6 سپتمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیانو مرصوص نے 6 سپتمبر کی یاد تازہ کی۔ پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ عوام کی امیدوں پر پوری اتری۔ ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ 60-0 ہوگا۔ کو کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ 6 سپتمبر ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ 1965 کی قربانیوں کا جذبہ ایک لازوال روشنی ہے۔ یہ ہماری آئندہ نسلوں کو ہر آزمائش اور چیلنج میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی چیلنج ہمیں خودداری اور خود مختاری کے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا۔ معرکہ حق کے دوران ہماری بہادر افواج نے 1965 کی طرح فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم دفاع پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 6 سپتمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ حالیہ معرکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آہنی دیوار بن گئیں۔ افواج پاکستان نے بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بھارتی اشتعال انگیزوں اور بدلتے علاقائی تناظر کی حقیقت سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید بناتے رہیں گے۔ مسلح افواج کا یوم دفاع پر شہداء کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیف کا بھی عقیدت کا اظہار۔ 6 سپتمبر 1965 اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی قوم کا عزم کبھی کمزور نہیں ہوا۔ پاکستانی قوم کا حوصلہ ناقابل شکست ہے۔ ہمارے نڈر ہیروز کی جرأت آج بھی آنے والی نسلوں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ ہمارے ہیروز کی لازوال قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے ثابت قدم اہل خانہ کو سلام پیش کرتی ہیں۔ مسلح افواج بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹی ہوئی ہیں۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ قدرتی آفات، مصیبتی گھڑی میں عوام کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
यौम दिफा पर वज़ीर दिफा का पाक फौज के शहदा को खराजी अकीदत। कहा 1965 की जंग के 60 साल बाद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर मट्टी में मिलाया। कहा ऑपरेशन बुनियानो मरसूस जैसे वाकयात कौमों की जिंदगी को जला बख्शते हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून की आबियारी से कर रही है। शहादत के जज्बे के बायस मुल्क नाकाबिल तस्खीर हो चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा और गाजियों को सलाम। कहा दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा हमारी आन और शान है। 6 सितंबर को गाजियों और कौम ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज के शहदा को खराजी अकीदत। कहा धरती के लिए सरहदों पर सीना सफर होने वाले बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा 6 सितंबर कौमी तारीख का काबिल फख्र, जुर्रत और पुख्ता अज़्म की अलामत है। बहादुर अफवाज कौम की ताकत के साथ दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। मार्का हक ने साबित किया कि मुत्तहिद कौम को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी फातिह खानी। कामरान टसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया दुनिया का वाहिद मुल्क है। हमें मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना है। भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। हमारी अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। यौम दिफा पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फौज और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर लाहौर सैयद फयाज हुसैन शाह ने फूल रखे, फातिह ख्वानी की। अल्लाहू की गूंज, दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम। यौम दिफा और शहदा पर ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। मालूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे में आवाज का जादू जगाया। दुश्मन प्रोपेगेंडा के जरिए हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सियासी और अस्करी क़यादत ने मार्का हक में बेहतरीन किरदार अदा किया। भारत जंग में शिकस्त के बाद मिन्नत समाजत पर उतर आया। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हेड पंजन पर दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रेले। पानी की आमद और अखराज 3,06,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23.5 फीट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब, 1 लाख से जायद आबादी मुतासर। बहावलनगर में भुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,41,984 क्यूसिक रिकॉर्ड। बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरेवाला में भी सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। बूरेवाला में भी दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल पर हंगामी इक़दामात। लाहौर समेत दीगर शहरों के वासा के सैकड़ों वाटर पंप गुजरात पहुंचा दिए गए। 5 सूबाई सेक्रेटरी भी गुजरात पहुंच गए। हंगामी इक़दामात पर मौसर अमल दरामद और सूरत हाल ठीक होने तक गुजरात में रहने का हुक्म। गुजरात में सीवरेज के जदीद निज़ाम के लिए पहले से मंजूर शुदा 21 अरब रुपए के पैकेज पर अमल दरामद शुरू करने का फैसला। मंसूबे के तहत मुस्तक़बिल में नकासी आपका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। 1 हफ्ते में गुजरात वासा के नए कायम होने वाले इदारे को भारी मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में फोक स्प्रे का आगाज। सैलाब मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मच्छर मार और जरासीम का स्प्रे किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की एंटी डेंगी मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत। नारोवाल, ननकाना साहब, पाकपतन समेत तमाम मुतासरा इलाकों में मुतादी बीमारी के बचाव के लिए मुहिम जारी। सुथरा पंजाब की टीमें भी मुतहरिक। फ्लड रिलीफ कैंपों में सफाई के बेहतरीन इंतजामात।
दरियाए चिनाब में चिन्योट के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों से 150 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। 3 लाख के करीब अफराद शदीद मुतासर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में भी दरियाए चिनाब का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। सैलाबी पानी के बाइस नशेबी और रिहायशी इलाके शदीद मुतासर। नौजवान डूब कर जा बहार। अब हमारे तमाम दरियाओं का पानी जो है वो रिसीडिंग की तरफ जाएगा। पानी सतलुज में इंशाल्लाह अब ये पानी हमारा रिसीडिंग ट्रेंड में ही रहेगा। गुजरात में मल्टीपल जो नाले हैं वहाँ से पानी इन छोटे बड़े नालों के थ्रू गुजरात की तरफ ग्रेडियंट की वजह से आया और उन ब्रीचेस की वजह से गुजरात सिटी में मैसिव अर्बन फ्लडिंग का सामना रहा। और इसी तरह जितनी भी मशीनरी रिक्वायर्ड थी वो बाकी अजला से और प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से वो गुजरात पहुंचा दी गई हुई है। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। किसी दरिया पर नया अलर्ट मौसूल नहीं हुआ। अब तमाम दरियाओं का पानी कम होगा। गुजरात में निकासी आप के लिए दरकार फंड्स जारी कर दिए। मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुजरात में बारिशों की वजह से मरकजी नालों में ब्रीचिंग के बायस अर्बन फ्लडिंग हुई। पाक फौज का पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शक्करगढ़ में हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तात्तुल जारी। पाक फौज की दिन रात की अनथक काविशों से हजारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप और जनरेटर समेत जरूरी अशिया शामिल। नेटली बेकर की क़यादत में वफ्द का NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग दी। वफ्द को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सैलाबी वार्निंग सिस्टम और तैयारी के मॉडल से भी आगाह किया गया। नेटली बेकर ने NDMA के मुश्तरका इक़दामात और जदीद मॉडल को खित्ते के लिए मिसाली करार दिया।